Hello dear students of class 7th. This is Priyanka Arora and students, I welcome you all to the virtual classroom of mathematics. So students, as you all know that we were doing the topic chapter number 7, lines and angles. And in my previous video, I have given the explanation of question number 1 to question number 6 of exercise 7.1. And in this particular video, I will continue with the same exercise and will give you the explanation of remaining question of exercise 7.1, which is from question number 7 to question number 13. Please watch this video and get the explanation of all these questions, and if you find problem in any question, then we will discuss it in the live class of maths. So let's begin with question number 7. Question number 7, and it is, look at the adjacent figure and answer the following question. One figure is given here on the plain paper related to question number 7. We have to see this figure and answer the questions which are given here on the lining page. So see, the first question here is, name the angles adjacent to angle DOE. DOE से adjacent angle हमें बताना है. In my last video, I have told you adjacent angle is an angle which has one common vertex and a common arm, or you can say common ray. So here the common vertex is here, O point is common, and the common ray is, it is asked the adjacent angle to DOE. So first of all you see where is DOE. So this is DOE. So DOE के adjacent angle, एक आप देखोगे इस तरफ adjacent जा रहा है और दूसरा angle इस तरफ adjacent जा रहा है. So DOE के adjacent जो दो angles जा रहे हैं वो है, first तो होगा DOC और दूसरा angle होगा AOE. अब आप इसको किसी भी तरीके से लिख सकते हो, आप चाहो तो इसको AOE लिख सकते हो, आप चाहो तो इसको EOA भी मेंशन कर सकते हो. और ये एडजेसेंट क्यों होंगे, हमें पूछा गया है एंगल DOE के बारे में. तो यहाँ पर अगर हम मेंशन करते हैं DOE को, तो आप देखिए DOE के अंदर जो कॉमन वर्टेक्स है वो क्या है, O, और जो रे है वो यहाँ पर OD रे जा रही है. यही OD रे इस एंगल COD को फ्रेम करने में भी यूज में ली गई है. आप देखिए अगर हम COD को फ्रेम कर रहे हैं तो इसके अंदर जो रे OD है वो OD DOE के अंदर भी आ रही है और COD के अंदर भी आ रही है. तो ये हो गई इसकी कॉमन रे और यहाँ पर आ गई इसकी कॉमन वर्टेक्स. ओके, सो एक जो एडजेसेंट एंगल है वो तो हो गया हमारे पास में COD, और दूसरा जो एडजेसेंट एंगल है वो हो जाएगा यहाँ पर एंगल AOE. सो दिस इज द second adjacent angle. So there are two adjacent angles of angle DOE. First one is COD and the other one is AOE. Okay. Now B part is, name the angle equal to angle COD. COD के equal angle कौन सा है, तो COD आप देखिए यहाँ पर है ये COD. COD के just opposite angle कौन सा जा रहा है, this is COD. Okay. COD के जस्ट सामने आप देखिए कौन सा एंगल जा रहा है, तो COD के जस्ट सामने आप देखेंगे एंगल आ रहा है AOE, इसके क्रॉस में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. सो द एंगल इक्वल टू एंगल COD इज एंगल AOE. सो सी, दिस इज व्हाट written here, the angle equal to COD is angle AOE. Fine. Then C part, name the angles forming a linear pair. हमें वो एंगल बताने हैं जो मिलाकर लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं. ओके, लीनियर पेयर दैट मींस सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल होना चाहिए जिसका मेजरमेंट क्या आना चाहिए, 180 डिग्री. ओके, तो अगर आप देखेंगे तो इन तीनों एंगल को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो एक सेमी सर्कल यहाँ पर बन रहा है. जब आप इन तीनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो इसका सम मिलाकर 180 डिग्री आ रहा है. अब जब 45, 75 और 60 डिग्री को ऐड करेंगे तो इसका सम मिला के कितना आ रहा है, 180 डिग्री. इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर COD और DOE को अगर आप
ऐड करेंगे तो ये भी, इसका भी जो सम है वो क्या आ जाएगा 180 डिग्री. दैट मीन्स इट इज ऑल्सो फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर. एंड फाइनली अगर आप यहाँ पर इन दोनों को भी ऐड करके देखते हैं तो यहाँ पर भी क्या बन रहा है, एक सेमी सर्कल फ्रेम हो रहा है. तो ये दोनों एंगल भी मिलाकर क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे. एंगल DOE एंड एंगल AOE, ये दोनों भी मिलाकर लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं. फाइन. And if you will see again, then these two angles, that means अगर यहां से आप देखते हैं तो ये भी जो है सेमी सर्कल यहाँ पर फ्रेम कर रहे हैं, ये तीनों एंगल मिलाकर, तो ये भी एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं. सो सी यहाँ पर बोला गया है हमें वो एंगल बताने हैं जो पेयर में आ रहे हैं. पेयर में दैट मीन्स दो एंगल होने चाहिए सिर्फ. तो दो एंगल के अंदर आप किसको ले सकते हो यहाँ पर, ओके. पेयर के अंदर हम दो ही एंगल लेंगे. वैसे तो इन तीनों को मिलाकर, जैसा मैंने बताया, इन तीनों को मिलाकर भी लीनियर पेयर बन रहा है, इन तीनों को मिलाकर भी लीनियर पेयर बन रहा है, इन दोनों को मिलाकर भी लीनियर पेयर बन रहा है, और इन दोनों को मिलाकर भी लीनियर पेयर बन रहा है. तो आप या तो यहाँ पर पेयर ले सकते हो COD एंड DOE का, ओके. फर्स्ट पेयर आप यहाँ पर लिख सकते हो एंगल COD एंड DOE, ओके. ये दोनों एंगल मिलाकर फ्रेम कर रहे हैं लीनियर पेयर को. फाइन. सेमी सर्कल ड्रॉ हो रहा है यहाँ पर. या फिर आप ये नीचे वाले दोनों एंगल ले सकते हो क्योंकि ये दोनों मिलाकर भी यहाँ पर एक सेमी सर्कल को फ्रेम करेंगे. सेमी सर्कल के अंदर नीचे की तरफ जो दो एंगल आ रहे हैं वो दोनों एंगल हैं, एक तो है DOE एंड दूसरा है यहाँ पर AOE. So you can take this pair also, any one pair you can mention here. So here I have mentioned angle AOE and angle EOD. आप EOD लिखिए या DOE लिखिए, it is same only. Fine. बस जो पॉइंट O है, वर्टेक्स वाला जो पॉइंट है वो सेंटर में आना चाहिए. तो आप इसको DOE भी मेंशन कर सकते हो या फिर आप इसको EOD भी मेंशन कर सकते हो. तो इन दोनों पेयर्स में से कोई भी एक पेयर आप लीनियर पेयर के अंदर डिनोट कर सकते हैं. देन the next is find the measure of angle DOE. हमें यहाँ पर DOE का मेजरमेंट फाइंड आउट करना है. यहाँ पर देखिए ये जो DOE है ये मिसिंग है, यहाँ पर ये फाइंड आउट नहीं है. तो अभी मैंने जैसे आपको बताया कि COD एंड DOE मिलाकर लीनियर पेयर फ्रेम कर रहे हैं. लीनियर पेयर अगर ये फ्रेम कर रहे हैं दैट मीन्स इन दोनों का सम मिलाकर कितना होगा, 180 डिग्री होगा, राइट. अब COD का मेजरमेंट जो है वो गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर, इट इज 60 डिग्री. ये 60 डिग्री है, प्लस हमको DOE का मेजरमेंट नहीं पता है, तो DOE जो है वो आप ऐसा का ऐसा ही मेंशन कर देंगे और दोनों का सम मिलाकर क्या हो गया 180 डिग्री. नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, DOE को आप लेफ्ट हैंड साइड में ही रहने देंगे और जो 60 है उसको आप राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 60. देन कैलकुलेट करके आपका आंसर आ जाएगा 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120 डिग्री. तो यहाँ पर इस तरीके से हम DOE का मेजरमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं. फाइन. देन ई पार्ट के अंदर हमसे पूछा गया फाइंड द मेजर ऑफ एंगल AOE. अब हमें AOE का मेजरमेंट फाइंड आउट करना है. AOE का मेजरमेंट फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स आप दो वे यूज में ले सकते हो. फर्स्ट वे तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर आप देख रहे हो ये 60 डिग्री है और हमने सेकंड पॉइंट के अंदर करा था कि जो COD है वो AOE का इक्वल एंगल है बिकॉज दीज बोथ आर द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. ये एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है. तो अगर ये 60 डिग्री है तो दैट मीन्स एंगल AOE भी क्या आ जाएगा 60 डिग्री बिकॉज दे आर ऑपोजिट एंगल्स. तो ये फर्स्ट वे है, आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हो. सेकेंड वे क्या है कि हमने अभी DOE का मेजरमेंट फाइंड आउट किया था 120 डिग्री. तो अगर DOE का मेजरमेंट 120 डिग्री है तो हम AOE का मेजरमेंट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि DOE और AOE मिलाकर लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं. अगर ये दोनों भी मिलाकर लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं दैट मीन्स इन दोनों का सम मिलाकर होगा 180 डिग्री. तो DOE जिसका मेजरमेंट हमने अभी ऊपर फाइंड आउट करा था अगर 120 डिग्री है तो हमें फाइंड आउट करना होगा AOE का मेजरमेंट. तो हम इसके साथ में प्लस में ही लिख देंगे AOE को
इज इक्वल टू 180 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप में AOE को आप लेफ्ट हैंड साइड में ही लिखेंगे और राइट हैंड साइड में आ जाएगा 180 माइनस 120 डिग्री। देन AOE इज इक्वल टू, जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। सो दिस इज द अदर वे ऑफ फाइंडिंग द मेजरमेंट ऑफ एंगल AOE। या तो आप डायरेक्ट फाइंड आउट कर दीजिए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से, या फिर आप इस तरीके से कंप्लीटली सॉल्व करके फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हियर आई हैव गिवन द सॉल्यूशन in both the way, whichever way you find it easy, you can solve it in that way in your exam. Okay, then part F के अंदर पूछा गया है name a pair of vertically opposite angle। हमें यहाँ पर vertically opposite angle का पेयर बताना है। तो vertically opposite angle अभी हमने डिस्कस करा है प्रीवियस स्टेप के अंदर ही, COD का vertically opposite angle है AOE। So these both are the vertically ऑपोजिट एंगल जो एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट एंगल है। फाइन, क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है और इंटरसेक्टिंग लाइन के अंदर जो ऑपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। सो हियर द ऑपोजिट एंगल इज COD एंड AOE। फाइन, so that is question number 7. Now let us move on to question number 8. Now there is no such figure related to question number 8, so the plain paper will remain blank in front of question number 8, and it is two supplementary angles are such that one is 2/3 of the other। दो supplementary angles इस तरीके से हैं कि जो एक एंगल है वो दूसरे एंगल का 2/3 है। And this I have told you in my previous video also that the sum of pair of complementary angle is equals to 90 degree and the sum of pair of supplementary angle is equals to 180 डिग्री। पेयर में होते हैं एंगल, दो एंगल का सम मिलाकर 180 डिग्री होता है सप्लीमेंट्री में। तो यहाँ पर गिवन है कि जो एक एंगल है वो दूसरे एंगल का 2/3 है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कंसिडर करेंगे लेट द फर्स्ट एंगल बी x। फर्स्ट एंगल को हम x मानेंगे। दूसरे एंगल के बारे में क्या बोला गया है कि दूसरा एंगल पहले एंगल का 2/3 है, तो वो हो जाएगा 2/3x दूसरा एंगल। नाउ सम ऑफ द पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अकॉर्डिंग टू दिस हमारी इक्वेशन बन जाएगी दोनों एंगल का सम। सो फर्स्ट एंगल है x और सेकंड एंगल है 2/3x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इस स्टेप में आप लेंगे स्टूडेंट्स एलसीएम। सो राइट नाउ देयर इज नथिंग बिलो x। x के नीचे कोई नंबर नहीं है, तो अगर x के नीचे कोई नंबर नहीं है तो हम x के नीचे मेंशन कर सकते हैं नंबर 1। अब एक बार अगर डिनोमिनेटर में नंबर 1 आ गया है तो हम 3 और 1 का ले सकते हैं एलसीएम। 3 और 1 का एलसीएम लेने पर आ जाएगा 3। नाउ 1 की टेबल में 3 आता है 3 टाइम्स, 3 को जब आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3x, एंड 3 की टेबल में 3 आता है 1 टाइम, 1 को जब आप 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2x। अब हमारी इक्वेशन क्या बन गई, 3x प्लस 2x अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर 3x और 2x को आप प्लस कर देंगे तो आ जाएगा आपके पास में 5x। ओके, और 5x के नीचे जो 3 है वो डिवीजन में है, जब वो इक्वल टू के अदर साइड ट्रांसफर हो जाएगा तो वो मल्टीप्लिकेशन के अंदर आ जाएगा। तो 180 को आप मल्टीप्लाई करेंगे नंबर 3 से। फाइन, देन नेक्स्ट स्टेप, जो ये 5 है x के साथ में, इसको भी हम अदर साइड ट्रांसफर कर देंगे। तो अदर साइड में नंबर था 180 into 3। ओके, सो दिस 5 which is in multiplication will go in other side in division। so 180 upon 3 के डिनोमिनेटर में यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 5। ओके, देन what you will do, you will cancel this 5 and 180। इस 5 और 180 को आप कैंसिल करोगे तो 5 की टेबल से ये कैंसिल हो जाएगा। 5 1 is 5, 5 3 is 15, 3 कैरी ओवर, so it will become 30, 5 6 is 30, तो कैंसिल होके आ जाएगा यहाँ पे 36, और फिर आप 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 108 डिग्री। यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 108 डिग्री। x हमने कंसिडर किया था फर्स्ट एंगल को और सेकंड एंगल को हमने कंसिडर किया था 2/3x। जो सेकंड एंगल था वो फर्स्ट एंगल का 2/3 था, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2/3 into 108। 2/3 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स द साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अब 3 और 108 को आप कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा अगेन 36। नाउ 3 3 is 9, 1 कैरी ओवर 18, 3 6 is 18। अब 36 और 2 को आप मल्टीप्लाई करिए तो आंसर आ जाएगा 72। सो फर्स्ट एंगल जो सप्लीमेंट्री एंगल है, फर्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल कैलकुलेट होके आ गया 108, और जो सेकंड सप्लीमेंट्री एंगल है वो कैलकुलेट होके आ गया 72। अब आप जब इसको ऐड करके देखेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 182।
degree, which is the sum of pair of supplementary angle. एडिशन करने पर 180 आ गया, that means हमारा कैलकुलेशन exactly correct था. So this is how we have to do question number 8. What was given in the question? That one angle is 2/3 of the other angle. तो एक angle x हो गया और दूसरा हो गया 2/3x, and then you have to follow the procedure of LCM and then further solve it. Okay. Now let us move on to question number 9. So this is question number 9, and in question number 9 again there is no figure. The plain paper will remain blank, and question number 9 is find the angle whose measure is equal to the measure of its complement. हमें एंगल का मेजरमेंट निकालना है, मेजर होगा वो अपने कॉम्प्लीमेंट एंगल के इक्वल होगा. तो यहाँ पर हमें कंसिडर करना है लेट द इक्वल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बी x. हमें मानना है कि जो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, लाइक पेयर ऑफ एंगल होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर, तो हमें मानना है यहाँ पर कि दोनों इक्वल हैं, तो दोनों ही एंगल को हम मान लेंगे यहाँ पर x. ओके, एंड द सम ऑफ द पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो दोनों इक्वल एंगल x हैं और दोनों का सम मिलाकर क्या हो जाएगा 90 डिग्री. तो इक्वेशन यहाँ पर आप फ्रेम कर लेंगे x प्लस x इज इक्वल टू 90 डिग्री. नेक्स्ट स्टेप के अंदर x और x को जब आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री. नेक्स्ट स्टेप में जो x है वो मल्टीप्लिकेशन में है, तो जब वो अदर साइड ट्रांसफर होगा राइट हैंड साइड में, तो 90 के साथ में डिवाइड हो जाएगा 2. 90 विल बी डिवाइडेड बाय 2, और 90 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 45 डिग्री. तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 45 डिग्री, और दोनों एंगल को हमने x माना था, तो दैट मीन्स दोनों का मेजरमेंट इक्वल है, तो दोनों इक्वल एंगल्स हो जाएंगे 45 डिग्री एंड 45 डिग्री. Thus the angle whose measure is equal to the measure of its complement is 45 degree. So that was related to complementary angle. The same we have to do in the B part, but here we have to do it with the supplementary angle. तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, equal supplementary को हम यहाँ पर x मानेंगे. तो यहाँ पर x इक्वेशन सीधा फ्रेम हो जाएगी x प्लस x. अब सप्लीमेंट्री कर रहे हैं, दैट मीन्स दोनों का सम मिलाकर क्या होगा 180 डिग्री, बिकॉज दीज आर द पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल. x और x को जब आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री. नेक्स्ट स्टेप में x यहाँ पर ही रहेगा एंड 180 will be divided by number 2, and then x is equal to, when you divide 180 by 2 it will give you 90 डिग्री. दैट मीन्स जो दोनों इक्वल एंगल होंगे वो होंगे 90 डिग्री. इसको आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं, लाइक कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर जब आप 45 और 45 को ऐड करके देखेंगे तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री का सम आ गया 90 डिग्री. यहाँ पर दोनों इक्वल एंगल्स हो गए और सम आ रहा है यहाँ पर 90 डिग्री. इसी तरीके से अगर हम सप्लीमेंट्री को चेक करेंगे तो इसका रिजल्ट आया 90, तो 90 और 90 को जब आप ऐड करेंगे तो इसका सम आ जाएगा 180 डिग्री. सो दीज आर द इक्वल angles of supplementary. See, the angle whose measure is equal to the measure of its supplement is 90 degree. Okay, so that is how we have to do question number 9. Now let us move on to question number 10. Now question number 10 is again very simple question. Here we have to classify the following pairs of angle as complementary or supplementary. हमें बताना है कि ये जो pairs of angle है ये complementary angles हैं या supplementary angle है. दोनों एंगल्स का मेजरमेंट गिवन है, आपको सिंपली इन एंगल्स को ऐड करके देखना है. अगर ऐड करने के बाद में सम आता है 180 डिग्री तो वो होगा सप्लीमेंट्री, और अगर ऐड करने के बाद में सम आता है 90 डिग्री तो वो होगा कॉम्प्लीमेंट्री. तो आप देखिए फर्स्ट पार्ट 159 प्लस 21 इज 180, दैट मीन्स इट इज सप्लीमेंट्री. सेकेंड पार्ट 29 प्लस 61 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, दैट मीन्स इट इज कॉम्प्लीमेंट्री. थर्ड 90 प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180, सो इट इज सप्लीमेंट्री. Then 45 plus 45 is 90 degree, that means it is complementary. Next 180 plus 0 is equals to 180, that means it is again supplementary. Then F part is 130 plus 50 which is 180, again supplementary. Then 60 plus 30 is equals to 90 degree, that means complementary. 0 plus 90 is equals to 90 degree, that means again complementary. 109 plus 71 is 180, that means supplementary. 115 plus 65 is equals to 180, that means supplementary. So in simple way, just remember if the sum is 180 then supplementary, and if the sum is 90 degree then it is complementary. Okay, so now we are on question number 11 and it is find the value of x in each of the following. यहाँ पर कुछ figures given है और इन figures के अंदर
x की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो आप फर्स्ट फिगर देखिए, दिस इज फर्स्ट फिगर, और यहाँ पर जो तीन एंगल हैं वो है AOB, BOC एंड COD, दीज आर द थ्री एंगल्स। और आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पर इन तीनों एंगल्स को मिलाकर एक सेमी सर्कल बन रहा है, और सेमी सर्कल बन रहा है, दैट मीन्स इट विल बी काउंटेड एज लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर की वैल्यू होती है 180 डिग्री। दैट मीन्स अगर हम इन तीनों एंगल को ऐड करते हैं तो इसका सम होगा 180 डिग्री। सो सी, पे अटेंशन हियर, एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। AOB की वैल्यू आप पुट करेंगे x डिग्री, BOC इज 2x डिग्री, COD is 3x degree is equals to 180 degree. Then you have to add these x. The value of x you will add. So 3 plus 2 is 5 and 5 plus 1. x के साथ में कोई वैल्यू नहीं है तो हम उसको कंसिडर करेंगे 1. तो ये तीनों ऐड होकर हो जाएंगे 6. तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 6x is equals to 180 डिग्री। अब ये जो 6 है यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, तो नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा डिवाइड में। कैंसिल करिए आप 180 और 6 को, सो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 एंड 0 एज इट इज। दैट मींस x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 30 डिग्री। ओके, सिर्फ x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला था, तो इस तरीके से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। नाउ सी पार्ट B, फिगर B के अंदर दिस इज द फिगर, यहाँ पर ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, और इंटरसेक्टिंग लाइन के अंदर दो एंगल हमें गिवन है। यहाँ पर एक है एंगल AOD और एक है एंगल BOC। आप देख सकते हो इंटरसेक्टिंग लाइन के ऊपर ये आमने सामने वाले एंगल्स गिवन है, दैट मींस ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का जो मेजर होता है वो एग्जैक्टली सेम होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम जो इक्वेशन बनाएंगे वो इक्वेशन होगी एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। सी, ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे। इक्वल क्यों है, ब्रैकेट में आप रीजन मेंशन करेंगे, इक्वल है बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब आप AOD के नीचे, जस्ट नीचे आप मेंशन कर देंगे AOD की वैल्यू। तो AOD की वैल्यू है 4x प्लस 20, और BOC के नीचे आप BOC की वैल्यू मेंशन कर देंगे, BOC की वैल्यू है 7x प्लस 5। ओके, नाउ लाइक टर्म्स को साथ में करिए, 4x इधर ही रहेगा, प्लस का 7x जो यहाँ पर है वो इधर ट्रांसफर होगा तो वो हो जाएगा माइनस का 7x, और प्लस का 20 जो लेफ्ट हैंड साइड में जब वो राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो हो जाएगा माइनस का 20। अब 4x में से 7x को हम माइनस नहीं कर सकते, तो 7 में से 4 को माइनस करिए, आ जाएगा 3। 7 ग्रेटर है, 7 के आगे माइनस का साइन है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा माइनस का साइन। और 20 में से जब आप 5 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 15 माइनस का 15, बिकॉज 20 इज ग्रेटर। अब ये माइनस का साइन और ये माइनस का साइन, दोनों माइनस के साइन हो जाएंगे कैंसिल, और x के साथ में जो 3 है वो मल्टीप्लीकेशन में, नेक्स्ट स्टेप में जब ये नीचे आएगा तो आ जाएगा डिवीजन में। अब 15 और 3 को जब आप कैंसिल करेंगे, सो 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 5। सो दैट इज हाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन पार्ट B। नाउ पार्ट C, पार्ट C के अंदर भी हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर देखिए AOB और BOC, यहाँ पर बन रहा है एक सेमी सर्कल। ओके, सेमी सर्कल बन रहा है, दैट मींस अगेन इट इज फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, एंड द मेजर ऑफ लीनियर पेयर इज 180 डिग्री। तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन बनेगी एंगल AOB प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंड इन ब्रैकेट विल मेंशन लीनियर पेयर। नाउ AOB की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी 5x प्लस 10, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे 5x प्लस 10, प्लस BOC की वैल्यू गिवन है यहाँ पे 148 डिग्री माइनस 4x, तो हम मेंशन कर देंगे 148 माइनस 4x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब लाइक टर्म्स को साथ में करिए, तो 5x और 4x को हम साथ में लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, 5x माइनस 4x एंड प्लस 10 एंड प्लस 148 को भी हम साथ में मेंशन कर देंगे इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 5x में से 4x को जब आप माइनस करेंगे तो आ जाएगा x, एंड 10 और 148 को जब आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा 158 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप में ये 158 ट्रांसफर हो जाएगा राइट हैंड साइड में, तो हो जाएगा माइनस का 158। अब सब्ट्रैक्ट करिए, 180 में से 158 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 22। सो दिस इज हाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन पार्ट C। नाउ let us move on to part D of question number 11. Yes, so this is the figure of part E of question number 11. Here you see students, we have to find the value of x, और यहाँ पर ये सारे एंगल मिलाकर एक कंप्लीट एंगल
फॉर्म कर रहे हैं, एक सर्कल बन रहा है यहाँ पर। अगर हम इन सारे एंगल्स को ज्वाइन कर देते हैं तो ये सारे एंगल्स ज्वाइन होकर सेंटर में फ्रेम कर देंगे एक सर्कल। और सर्कल आपको पता है स्टूडेंट्स के जो सर्कल होता है वो बनाता है कंप्लीट एंगल। ओके, सो यहाँ पर जो एंगल्स हैं उनका नेम हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो आप स्टार्ट करिए ए ओ बी से, ये फर्स्ट एंगल हो जाएगा, फिर हो जाएगा बी ओ सी सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल हो जाएगा सी ओ डी, एंड देन फोर्थ एंगल हो जाएगा डी ओ ए। इन सबका सम मिलाकर हो जाएगा 360 डिग्री, विच इज मेकिंग अ कंप्लीट एंगल। नाउ मेंशन द वैल्यूज। ए ओ बी की जगह आ जाएगा x डिग्री, बी ओ सी की जगह आ जाएगा 3x डिग्री, सी ओ डी की जगह आ जाएगा 2x डिग्री, एंड डी ओ ए की जगह आ जाएगा 4x डिग्री इज इक्वल्स टू 360। 360 कैसे आया आप समझ गए, क्योंकि ये सर्कल फ्रेम हो रहा है सेंटर में, दैट मीन्स कंप्लीट एंगल बन रहा है यहाँ पर। अब हम x वाली वैल्यूज को ऐड करेंगे। सो 4 + 2 is 6, 6 + 3 is 9, and 9 + 1 is 10. So it will be 10x is equals to 360 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप में ये जो 10 है मल्टीप्लीकेशन में, ये अदर साइड ट्रांसफर होगा तो ये आ जाएगा डिवीजन में, 360 डिवाइडेड बाय 10। अब आप कैंसिल करिए। सो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 36 degree, which is the answer of part D. Now question number 12 is match the following. यहाँ पे हमें ये match the following करने हैं। तो फर्स्ट है टू एक्यूट एंगल्स। अगर दो एक्यूट एंगल्स हैं तो दो एक्यूट एंगल, जैसे कि कोई भी दो एक्यूट एंगल ले लूं मैं, 45 डिग्री लिया एक मैंने और दूसरा अगर मैंने लिया 30 डिग्री, तो इन दोनों का सम मिलाकर कितना आ जाएगा, 45 + 30 डिग्री इज इक्वल टू 75 डिग्री। ओके, अगर और मैं यहाँ पर दो एंगल अगर ले लूं 45 एक्यूट एंगल 45 एंड अगेन 45 ही ले लूं, तो 45 और 45 का सम मिलाकर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर अगर हम दो एक्यूट एंगल्स लेते हैं तो उसका सम कैन बी कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है, तभी होगा कॉम्प्लीमेंट्री अगर दोनों मिलाकर क्या आएंगे यहाँ पर 45 45, अगर दोनों ही 45 45 होंगे तब वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो सकता है। लेकिन अगर एक 45 है एक 30, वो चेंज भी हो सकता है उसका मेजरमेंट, तो यहाँ पर कैन बी वर्ड इसीलिए यूज में लिया गया है। ओके, तो अगर दो एक्यूट एंगल है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो सकते हैं, तो ए वाला पार्ट मैच होगा थर्ड से। देन टू राइट एंगल, अगर दो राइट एंगल है तो राइट एंगल आपको पता है राइट एंगल का मेजरमेंट होता है 90, तो अगर दो बार 90 आ रहा है तो 90 एंड 90 को ऐड करके आ जाएगा रिजल्ट आपका 180 डिग्री। सो two right angles are supplementary. So the correct answer is written here only. So you have to only mention B here. So this is B part. Then the third is two straight angle. अगर दो straight angle है, straight angle का measurement आपको पता है students होता है 180 डिग्री। तो अगर दो straight angle है that means 180 plus 180, तो दोनों को मिलाकर result क्या आ जाएगा 360 degree. Okay, so the answer of C part is add up to 360 degree. तो यहाँ पर आप mention कर देंगे part C. Okay, then angles 30 and 60, अगर आप 30 और 60 को add करेंगे, so 30 plus 60 is equals to 90. 30 plus 60 will give you the result as 90 degree. Okay, and 90 degree, you know 90 degree is complementary. So the answer of D part is part first. So here you have to mention D. Okay, so the correct will be D, B, A, C. Okay, now question number 13. Last question is true, false. So see, first टू एक्यूट एंगल्स कैन बी सप्लीमेंट्री, दो एक्यूट एंगल का सम मिलाकर सप्लीमेंट्री हो सकता है। सो इट इज नॉट पॉसिबल, दो एक्यूट एंगल कभी भी सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते हैं। सो ये होगा फॉल्स। ओके, सो यहाँ पर आप फर्स्ट वाले में मेंशन कर देंगे फॉल्स। दो एक्यूट एंगल अगर आप 89 भी लेते हो, सो 89 और 89 को जब आप ऐड करोगे तो भी आपके पास में जो रिजल्ट होगा वो 180 डिग्री नहीं आएगा। सप्लीमेंट्री के अंदर रिजल्ट आना चाहिए 180 डिग्री। और एक्यूट एंगल जो होते हैं वो 0 से 90 के बीच में होते हैं। तो 90 का जो यहाँ पर आप लास्ट नंबर ले सकते हैं राउंड फिगर में, वो होता है
89, तो 89 और 89 को जब आप ऐड करेंगे तो उसका सम भी मिलाकर कितना आएगा 178 डिग्री, विच इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। फाइन, सप्लीमेंट्री एंगल नहीं हो सकते हैं, तो ये होगा फॉल्स। देन टू एडजेसेंट एंगल्स कैन बी कॉम्प्लीमेंट्री, दो एडजेसेंट एंगल्स हैं अगर पास पास के एंगल्स हैं तो उनका सम मिलाकर कॉम्प्लीमेंट्री, दैट मीन्स 90 डिग्री हो सकता है। सो दिस इज पॉसिबल। कैन बी, यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है कैन बी, तो अगर कैन बी लिखा हुआ है तो यस इट इज पॉसिबल, सो इट विल बी ट्रू। सो यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे ट्रू। देन थर्ड, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑलवेज फॉर्म अ लीनियर पेयर, दो सप्लीमेंट्री एंगल हमेशा लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, सो दिस विल बी फॉल्स। दो सप्लीमेंट्री एंगल लीनियर पेयर फॉर्म करें ही करें, इट इज नॉट कंपल्सरी, सो दिस विल बी फॉल्स। देन टू ऑब्ट्यूज एंगल कैन बी सप्लीमेंट्री, दो ऑब्ट्यूज एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं, सो इट इज ऑल्सो फॉल्स, इट इज नॉट पॉसिबल। सो ऑब्ट्यूज एंगल जो होते हैं स्टूडेंट्स, उसका जो मेजरमेंट होता है वो 90 डिग्री से अबव होता है और 180 डिग्री से बिलो होता है। तो 90 डिग्री से अबव, अगर 90 डिग्री से अबव तो हम सबसे स्मॉलेस्ट भी लेते हैं, अगर 91 लेते हैं दोनों, तो 91 और 91 को भी अगर आप ऐड करेंगे तो इसका सम आ जाएगा 182 डिग्री, और सप्लीमेंट्री 180 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो टू ऑब्ट्यूज एंगल कैन नॉट बी सप्लीमेंट्री। But here it is written it can be supplementary, so it cannot be supplementary, so that means it is false. Okay, so students, here I have given you the explanation of all the remaining questions of exercise 7.1, that is from question number 7 to question number 13, and I hope now all these questions must be clear to you. But still, if you find that there is difficulty in any question, then I request you to mark your doubt and please discuss your doubt in the live class of maths. Okay students, so today I'm ending my lecture here only, and now I will see you back in the next video where I will be giving you the new exercise, that is 7.2. Fine? So till then, please complete your work and do take good care of yourself. Thank you students.